So, friends, let's start with the new topic of muscles and bones movement. Previously, we have talked about the various other classification of muscles and other things. This series regarding the muscles and the movement of the bones in our body with respect to a Neat syllabus. So, let's start with the topic. Movement of an organ occurs due to the pulling of the bones caused by the force generated by contraction in muscles. So muscles takes place along the joints which act as a fulcrum of the liver. So basically we are talking about the how the movement of the muscles around the joint takes place. So let's understand with the respect to the physics. So we have class 1 liver system, class 2 liver system, class 3 liver system, and then we are going to describe the disorders of the bones. So in this system we have to see the 3 points. Number 1, the fulcrum. Number 2, the resistance, and number 3, the effort. So in class 1 liver system, here the fulcrum is being between the effort and the resistance. See, it's being like this in case 1. In class 2, here the resistance is between the effort and the fulcrum. So in the human body resting on the toe, example of this is. And in class 3 liver system, it's a flexing movement of the elbow of the forearm. So these type of questions have been asked not only in previous NEET or PMTs or in the aims. They have been asked in a varied form accordingly. Now let's start with the disorders of the bone. In the disorders of the bone, we have to understand first what are the disorders and how the disorders takes place. First, the disorder could be around the joints. So if there is an inflammation of the joints, it's known as arthritis. Now this type of joint, there are several types. That likewise we have got rheumatoid arthritis or osteoarthritis and gouty arthritis. Okay, now let's talk individually with respect to what is rheumatoid arthritis. In the rheumatoid arthritis, it's been diagnosed by the presence of rheumatoid factor. What is rheumatoid factor? It's a type of immunoglobulin IgM. Okay, now this primary system inflammation of the synovial membrane, if it is left untreated, then the membrane thickens and a synovial fluid increases, exerting pressure that causes pain. So rheumatoid arthritis में inflammation होने लगता है. Now the membrane then starts secreting एक abnormal granule जिसे pannus कहेंगे, which after accumulating on the surface of the cartilage called erosion. As a result, fibrous tissue are attached with bones and becomes more ossified. That means में calcium deposition होने लगेगा, making the joint immovable. Its treatment concentrate on the reduction of pain and inflammation by heat treatment and physiotherapy, and in extreme case replacement of damaged joint. Clinically इसे explain करते हैं. अगर कोई भी person, if a person has got in a joint problem and he without undergoing a proper medical treatment, he goes to a quack and the quack asks for placing a plaster according to in place of the joints, then lead to what? A stiffening of that particular portion of the joint, leading to again inflammation of the thing and accumulation of certain osteoid thing in that particular synovial fluid, leading to the particular joining of that joint around the synovial fluid. तो उसमें ऐसा केस हो सकता है. तो ये तो क्लिनिकल केस हो गया. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑस्टियो आर्थराइटिस. पहले हमने र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में. ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है, मीन्स मसल्स में प्रॉब्लम आ जाएगी. करेक्टराइज बाय द डिजनरेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि अराउंड दी जॉइंट्स होती है, अराउंड दी बोन्स होती है, एंड प्रोडिफिकेशन ऑफ द न्यू बोन्स. यूजली अफेक्टेड जॉइंट्स आर स्पाइन. तो स्पाइन में हमें अफेक्ट करेगी नी जॉइंट और हैंड के जॉइंट्स में. सो हाथ के नी और स्पाइन जॉइंट्स में ये दोनों अफेक्टेड होती है. फिर आती है गाउटी अर्थराइटिस, कॉज्ड आइदर ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड और इनेबिलिटी टू एक्सक्रीटेड. तो जैसे ही यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है बॉडी में तो ये होने लगी. इट गेट डिपॉजिटेड इन द जॉइंट एज अ मोनोसोडियम सॉल्ट्स.
तो सॉल्ट का डिपॉजिट ज़्यादा होने लगेगा तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगेगी। ये भी स्पाइन में, नीज में, हैंड्स में प्रॉब्लम आती है। ऑस्टियोपोरोसिस इस ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चेंजेस ऑफ चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। सो डिक्रीज लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन इसमें मिलता है। सो हमने ये 3 चीज़ें देखी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउटी अर्थराइटिस एंड देन रिमोटॉइड अर्थराइटिस। स्पेशल पॉइंट इसमें हम ये सकते हैं, लेट्स स्टार्ट विद रिस्पेक्ट टू रैबिट। जैसे कि रैबिट, टैलस इन रैबिट इज कॉल्ड एस्ट्रागैलस। अब टैलस होता गया है, टैलस जैसे ह्यूमन में हैंड्स में हो गया, ह्यूमन में नी में हो गया, वैसे ही रैबिट्स में होता है, उसे कहेंगे एस्ट्रागैलस। वेबरियन ऑस्किल्स आर फाउंड इन फिशेज। वेबरियन ऑसिकल्स होती क्या हैं, ये ईयर्स के अराउंड होती हैं, तो हमारी जैसे 3 ऑसिकल्स होती हैं वैसे ही फिशेज में भी होती हैं, वेबरियन कहते हैं। देन एवियन बर्ड एंड रेप्टिलियन स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक, एक ही कॉन्डाइल से बना होता है बर्ड का और रेप्टिल का स्कल। फॉन्टेनियल्स आर टेम्पररी अपर्चर्स प्रेजेंट इन स्कल ऑफ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी के जो अपर्चर्स होते हैं, जैसे हमारे फ्रंटल बोन, लैटरल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन्स होते हैं, अटैच्ड होते हैं, वो उन्हें पहले फॉर्म में फॉन्टेनियल्स कहते हैं, जो कि गैप होता है जिसके अंदर। अब दूसरी बात, सुपीरियर इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्राe आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोफाइसिस रिस्पेक्टिवली। इन्हें वर्टिब्रे के सुपीरियर पोर्शन मतलब ऊपर वाला पोर्शन, इन्फीरियर पोर्शन, आर्टिकुलर पोर्शन प्रोसेसेस जो कि अटैच करते हैं, उन्हें प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोफाइसिस रिस्पेक्टिवली रीजन वो ज्वाइन करेंगे। नाउ देर इज नीमियल क्रेस्ट इज अ रिज फाउंड इन टीबिया ऑफ ए रैबिट। इवन दो ये क्वेश्चन पहले राजस्थान पीएमटी, हरियाणा पीएमटीज एंड बाकी पीएमटीज में आता था, लेकिन अभी वैसे नहीं आते, इसे हम लीव कर सकते हैं। देन आगे आता है ट्रॉक्लिया नॉच ऑफ रैबिट इज नोन एज सिग्मॉइड नॉच, ये भी लीव कर सकते हैं। देन pelvic girdles are made up of 2 hip bones which are known as innominates। so pelvic girdles की hip bones को हम innominate bones भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन एम्स में आ सकता है। now the dentary is a membranous bone found in the lower jaw of some vertebrate like rabbit, frog etc। दूसरी बात, जॉ सस्पेंशन ऑफ मैमल्स इज क्रेनियोस्टाइलिक। जॉ सस्पेंशन ऑफ मैमल्स क्रेनियम से अटैच हुआ और आगे पीछे मूव करता है। देन टेरिगॉइड बोन इज अ विंग शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ स्फिनॉइड बोन इन रैबिट स्कल। तो टेरिगॉइड बोन एक विंग शेप्ड एक्सटेंशन है स्फिनॉइड बोन का, जो कि रैबिट के स्कल में है। क्या हमारे पास स्फिनॉइड बोन है? हमारे पास भी स्फिनॉइड बोन है, ठीक है। स्फिनॉइड बोन के अंदर हमारा पिट्यूटरी होता है जो कि बटरफ्लाई शेप्ड होता है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फ्रॉग इज टिबिया फिबुला, ये फैक्ट है जो याद के फन है। पटीला एंड पिसीफॉर्म सिस्मॉइड बोन्स फाउंड इन ह्यूमन। सो पटीला जो कि नी वाली होती है, पिसीफॉर्म बोन्स सिस्मॉइड बोन, पिसीफॉर्म ये जो हाथ के अंगूठे में is found in human. Now movement of hand while walking occurs before balancing. Okay, now the small sesamoid bone fibula often develops in tendons of lateral head of gastrocnemius muscles behind the knee joint। तो नी है उसके पीछ भी उसके अराउंड टेंडन्स हैं, टेंडन्स जो कि ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, उसके अराउंड एक गैस्ट्रोनेमेसिस मसल्स होती है, उसमें क्या होता है, स्मॉल सेसमॉइड बोन फैबुला ऑफन डेवलप। सो जब उसमें ऑसिफिकेशन होने लगता है तो एक हड्डी बनती है जो कि सिस्मॉइड शेप्ड होती है, उसे कहेंगे फैबुला। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट की बात कर लें तो हमारे सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट मेनली। First the muscular one, then the ciliated one, then the amoeboid one. Then some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in the blood exhibits amoeboid movement. So mainly pseudopodia develops by the streaming of protoplasma. फिर आता है ciliary movement। ciliary movement में by the tubular organs, by the internal tubular organs which have got cilia. Okay, अब cilia के बारे में हम सेल के चैप्टर में पढ़ लेंगे। Now the passage of ovum through the female reproductive is due to the ciliary movement. Coordinated movement of cilia in trachea is due to the ciliary movement. Movement of limb, jaw, tongue, etc. require muscular movement. तो अब इसके हम बात muscular movement को पढ़ेंगे। Now
मसल पढ़नी है तो स्टडी इस मसल्स को हम कहेंगे मायोलॉजी, ना कि माइकोलॉजी, इसमें लोग डिफरेंस कर देते हैं। देन कम आता है मायोलॉजी, उसको हम सार्कोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि बेसिक यूनिट ऑफ मसल इज सार्कोमियर। नाउ ऑल मसल ऑफ द बॉडी डेवलप्स फ्रॉम मीजोडर्म, बट मसल्स ऑफ आइरिस आँख की, सीलरी बॉडी आँख की, मायो एपिथेलियल सेल ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स दे डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म। तो कुछ ये एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ ये मीजोडर्म से बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज है, एम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, असर्शन रीजन में आया हुआ है। देन दे हैव गॉट अ स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, क्योंकि एक्टिन मायोसिन की बात है, एक्सटेंडेबिलिटी, अगेन द एक्टिन मायोसिन, एंड इलास्टिसिटी। तो रिमेंबर एक्साइटेबिलिटी भी है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी भी है, इलास्टिसिटी भी है और एक्सटेंडेबिलिटी भी है। इन चारों वर्ड्स की अलग अलग मीनिंग है और इसके अकॉर्डिंगली इनके हम समझेंगे। सो इट गॉट कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्सटेंडेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड एक्साइटेबिलिटी। अबाउट 42% ऑफ द बॉडी वेट कॉन्ट्रीब्यूटेड मसल्स का है। अब मसल्स की बात करते हैं तो वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी और कार्डियक मसल। अब वॉलंटरी मसल्स में उन्हें हम स्केलेटल मसल भी कहेंगे। ट्रांसवर्स लाइन आर फाउंड एट रेगुलर इंटरवल, नाउ हैज दीज मसल्स आर स्ट्रिप, इसमें स्ट्राइएशन होता है। दूसरा, दे आर इन्वॉल्व इन लोकेटरी मोशन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर, कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल्ड बाय विल ऑफ द एनिमल, सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। अब हम वॉलंटरी मसल्स कर रहे हैं तो इसके अंदर है ना नर्वस सिस्टम के बारे में कर सकते हैं, तो उसमें ऑर्बैक्स प्लेक्सस और मेसनर प्लेक्सस होता है जो मसल के अंदर होता है। ये मसल, ये हम नर्वस सिस्टम के रिलेटेड पॉइंट बता रहे हैं। देन मसल फाइबर इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टेड टिश्यू, जिसे कहेंगे हम एंडोमाइसियम। सो कनेक्टिव मसल है, उसके अराउंड कनेक्टिव टिश्यू है, लेयर की बात, तो उसे कहेंगे एंडोमाइसियम। मैनी मसल फाइबर कंबाइन टू फॉर्म ए ग्रुप विच इज कॉल्ड फेसिकुलाई। तो अभी हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे उसमें फेसिक। सो रिमेंबर दिस वर्ड, वॉलंटरी मसल्स, एंडोमाइसियम, फेसिकुलम, देन दिस पेरीमाइसियम। इट्स ईच फेसिकुलाई इज कवर्ड बाय कनेक्टेड टिश्यू, उसे हम पेरीमाइसियम कहेंगे। मैनी फेसिकुलाई कंबाइन टू फॉर्म मसल, मसल इज ऑल्सो कवर्ड बाय लेयर ऑफ कनेक्टेड टिश्यू विच इज नोन एज एपीमाइसिलम। So the fiber attached to the tough rod of connective tissue called tendon, and tendon is further attached with the bone. So tendon होता है muscle to bone, ligament होता है bone to bone. Okay, next हम आते हैं। सो ये हमने डायग्राम देखा, डायग्राम में क्या है, डायग्राम में क्या है, डायग्राम में फेसिकुलाई है। फेसिकुलाई क्या है, मसल का बंडल है। तो मसल फाइबर, मसल सेल, सार्कोलेमा देखा आपने, देन ब्लड कैपिलरीज। अगर हम डाइसेक्शन करेंगे तो ऐसे, तो डायगोनल डाइसेक्शन करेंगे मसल का तो बंडल फाइबर मिलेगा और बंडल मिलेगा। अगर एनाटॉमिकल देखें, इसकी स्लाइड बना के देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनाटमी, तो हम एक लाइट बैंड देखेगा और डार्क बैंड देखेगा। सो एक पर्टिकुलर यूनिट को कहेंगे सार्कोमियर, उसमें एक जो पतली सी लाइन नज़र आ रही है उसे जेड लाइन कहेंगे। देखिए एक आता है बैंड, यानी एक पर्टिकुलर स्ट्रेच है, लाइन यानी लाइन है, तो जेड लाइन एंड आई, जेड लाइन एंड आई बैंड। So anisotropic A band means anisotropic, I band means isotropic band. Okay, मतलब अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी जो किसके बाद पास जाती है। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, मसल स्केलेटल मसल फाइबर इज सिलेंड्रिकल होता है, ट्यूबुलर और लॉन्ग एंड ब्रांच। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज सार्कोलेमा। सो इसकी मसल की फाइबर की आउटर मेम्ब्रेन अगर देखी जाए तो सार्कोलेमा कहेगी। ये डायग्राम में ऊपर वाले में देखा है। द सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर कोलेजन है। ईच मसल फाइबर कंटेन्स मल्टी न्यूक्लिएट सार्कोप्लाज्म, तो दैट मीन्स अगर स्केलेटल मसल की बात की जाए दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सार्कोप्लाज्म, क्योंकि एनर्जी चाहिए। दूसरा, न्यूक्लियस एंड सार्कोप्लाज्म आर फाउंड इन पेरिफेरल पार्ट। न्यूक्लियस भी और उसका सार्कोप्लाज्मा भी पेरिफेरल पार्ट में मिलता है, ठीक है, मतलब इलांगेटेड है। मायोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल रोज एंड फॉर्म्स द डार्क एंड light line. So dark line and light line. These lines are found in alternate order. These lines are made up of actin and myosin protein. Both protein are filamentous. Filament से बने होंगे. Now
एक्टिन फिलामेंट आर थिन वाइल मायोसिन थिक होते हैं। तो मायोसिन बीच में थिक होगा और एक्टिन थिन होता है। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिन, मायोसिन आर थिक। लाइट बैंड और बैंड मेड अप ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट, दीज बैंड्स आर मोनोरिफ्रैक्टिव एंड पोलराइज्ड लाइट, सो इट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक बैंड, मतलब लाइट को भेज देते हैं। इन ईच ऑफ द सेंटर ऑफ आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर नोन एज जेड लाइन, ओके, विच बाइसेक्ट्स इट्स। सो एक जेड लाइन भी की बात करें, द थिन फाइबर्स आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन। तो ये थिन फाइबर्स हैं, थिन जो नहीं हमारी एक्टिन होते हैं वो आई जेड बैंड से लाइन से जुड़े हैं। द फिलामेंट्स इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड इन द मिडल ऑफ द बॉडी बाय द थिन फाइबरस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। तो अंदर एम है, बाहर जेड है, जेड को एक्टिन ने जोड़ा है, एम को मायोसिन ने जोड़ा है। सो ए एंड आई बैंड आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द myofibrils. So myofibrils are actin and myosin. The portion of the myofibril between the two successive Z line considered as a functional unit, और उसी को हम sarcomere कहेंगे. So in the resting stage, the edges of the thin filament on either side of the thick filament partially overlaps the free end of the thick filament, leaving the central part of the thick filament. So this part of the thick filament not overlapped by the filament is known as a H zone. So ऐसा जोन जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी उसे हम H जोन कहेंगे. Now the sarcomere जो कि फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन के, उसमें एक ए बैंड होगा प्लस 2 हाफ आई बैंड होगी. तो एक ए बैंड होगा, 2 हाफ आई बैंड होगी, ये इंपॉर्टेंट है. द लेंथ ऑफ सार्कोमियर 2.5 माइक्रोमीटर. एक बैंड बराबर 1 माइक्रोमीटर. मायोसिन का लेंथ कितनी है? 1.5 माइक्रोमीटर. एक मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन पतला होता है, एंड 1 एक्टिन फिलामेंट सराउंडेड बाय 3 मायोसिन फिलामेंट. तो एक मायोसिन बाय 6 एक्टिन एंड 1 एक्टिन अराउंड 3 मायोसिन. जेड दिस मेड अप ऑफ एक्टिन, एक्टिन इन प्रोटीन. सो एक जेड के बारे में, जेड लाइन के बारे में बताया, तो जेड डिस्क जो बनी वो एक्टिन इन प्रोटीन से बनी. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन के बारे में बात करते हैं. ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अबाउट 2 filamentous thing. So okay, this actin is made up of filamentous thing. 2 F filamentous actin helically bound, मतलब twisted form में होते हैं to each other. Now the F actin is a polymer of globular actin. F actin जो कि है उसके अंदर है, उसमें एक bead स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है. Now the 2 filament of another protein tropomyosin also run in close in the F actin throughout its length. तो उसी के बीच में याद रखना, एक्टिन में एक्टिन बनता है एफ एक्टिन से. अब एक्टिन में ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, उसके बीच में बनेगा आपका ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन होगा और ट्रोपोमायोसिन के साथ ट्रोपोनिन भी होगा. अब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलर इंटरवल ऑफ द ट्रोपोमाइन. तो एक तरीके से आपने रोप देखी, तो रोप में नीडेड फॉर्म में आपकी एफ एक्टिन है, देन ट्रोपोमायोसिन है एंड ट्रोपोनिन है. इन द रेस्टिंग स्टेज ऑफ अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट. अब इसका फ़ायदा क्या है? जो एक्टिव बाइंडिंग साइट्स हैं मायोसिन के, उसके अंदर जाके एनगल्फ करता है, मतलब ये हुक है एक तरीके का ट्रोपोनिन जो कि मायोसिन में अंदर चला जाएगा. नाउ द ट्रोपोनिन इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी. अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एनगल्फ करेगा मायोसिन फिलामेंट के साथ. एक वो ट्रोपोनिन सी क्या करेगा? कैल्शियम बाइंडिंग साइट देगा. ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन साइट देगा, इंड्यूस करेगा. एंड ट्रोपोनिन आई जो इनहिबिटरी साइट होती है. नाउ अब इसको हम डायरेक्टली समझते हैं. लेट्स ट्राई. मायोसिन थिक फिलामेंट है. नाउ द मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन. जैसे वो है उसमें भी पॉलीमराइज है, इसमें भी ट्विस्टिंग है. तो इसमें भी एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा, एक एटीपी बाइंडिंग साइट होता है और इसके पास एक हेड होगा.
हेड होगा, टेल होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपी बाइंडिंग साइट. सो मेनी मोनोमरिक प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट. जैसे उसमें 3 बन रहे थे, इसमें मीरोमायोसिन आएंगे. हर एक मीरोमायोसिन हैज़ गॉट globular head with a short arm and a tail, the former being the heavy muromycin and the latter being the light. So पहली वाली हेड ग्लोबुलर हेड है, शॉर्ट आर्म है और टेल को हम हैवी म्यूरोमाइसिन कहेंगे, दूसरे को हम लाइट म्यूरोमाइसिन कहेंगे. नाउ द हैवी म्यूरोमाइसिन कंपोनेंट, द हेड short arm projects outwards at a regular filament and is known as a cross arm. So head cross arm comprises of what? The head part, the actin binding site, the ATP binding site. So the HMM or the heavy muromycin component, the head and the short arm, the head and the short arm projects outward at a regular filament and is known as a cross arm. The globular head is a active ATPase enzyme, active ATPase enzyme, and has a binding site for ATP and active sites for actin. So क्रॉस आर्म में ये चीज़ें हैं, ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है. अब मैकेनिज्म क्या याद है, ये इंपॉर्टेंट याद करना है. अब मैकेनिज्म सुनो, देखो. हाँ, द रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बीइंग बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय थ्योरी देनी चाहिए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ द थिन एक्टिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट. और द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सर्टेन सिग्नल. सिग्नल आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थ्रू व्हाट, मोटर न्यूरॉन. रिफ्लेक्स एक्टिविटी की बात हो रही. नाउ द मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber connected to it through a motor unit. Now the junction between the motor neuron and the sarcolemma of the fiber is called neuromuscular junction or motor end plate. फिर उसके बाद एक सिग्नल रिलीज होता है, a neural signal reaching to the junction known as a neurotransmitter acetylcholine, which generates an action potential in the sarcolemma. तो sarcolemma में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. कितना होता है मेनली थ्रेशोल्ड पोटेंशियल? +35 to 40. This spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ion into the sarcoplasma. तो इससे है ना क्या होगा, मसल फाइबर जाएगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा. तो हमने जो पीछे वो पढ़ा था ट्रोपोनिन के जो पॉइंट्स है कैल्शियम बाइंडिंग साइट वाला, वो एक्टिवेट हो जाएगा, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म. ऐसे ही कैल्शियम का आयन लेवल बढ़ा, लीडिंग टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन on an active filament and thereby removing the masking of active sites of मायोसिन. तो पहले उस पर अटैच होगा, फिर वो जाके मायोसिन से जुड़ जाएगा हुक के फॉर्म. यूटिलाइजिंग द, उसके लिए एनर्जी चाहिए, यूटिलाइजिंग एनर्जी बाय द ATP hydrolysis. Now the myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge. So दोनों की बॉन्डिंग हो गई. तो देखो ये डायग्राम में एक्टिन फिलामेंट है, फिर उसके बाद ये ATP से ADP बना, एक ADP से ATP बना, वो ज्वाइन किया मायोसिन फिलामेंट और क्रॉस ब्रिज बिटवीन द मायोसिन हेड, क्रॉस ब्रिज एंड द एक्टिन एंड the myosin filament. So this pulls the attached active filament toward the center of A band. अब anisotropic band की तरफ contraction हुआ. Now the Z line attached to these actin are also pulled inward, thereby causing a shortening. So इसे हम contraction कहेंगे. Now during the shortening of muscle, the I band get reduced. So I band reduce हो गया, thereby A band retains the लेंथ. अब A बैंड रिटेन्स द लेंथ बट I बैंड रिड्यूस की वो अंदर आ गया. A बैंड उतना ही है, I बैंड कम हो गया. नाउ द मायोसिन रिलीजिंग द ADP एंड द P1 goes back to the relaxed state. A new ATP binds and the cross bridge is broken. फिर उसके बाद ये जब स्लाइडिंग रोटेशन हुआ, फिर उसके बाद फिर टूटा, फिर उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज. So ATP is again hydrolyzed by the myosin head and cycle of cross bridge formation breakage repeated causing further sliding. So the process continues जब तक कैल्शियम
are pumped back to the sarcoplasmic membrane or cisternae, resulting in masking of the acting filament. Okay, resulting in masking of the active filament, na ki myosin filament. Okay, now this causes a return of Z line back to the original position Z. So पहले Z line कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर रिलैक्स हुई. रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, जिस एनर ब्रेक डाउन हुआ कॉजिंग फटिंग. नाउ डायग्राम से देख लीजिए. द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड विद द ग्रूव. नंबर 2, डी अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन. डी अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन. सो ये मैकेनिज्म है आपका. अगेन देख लेते हैं डायग्राम से. ये हमारा एच बैंड है, ये हमारा आई बैंड है, ये हमारा ई बैंड है. ओके फाइन. रिलैक्स स्टेट में देखो जेड लाइन देखो, ठीक है. फिर रिलैक्स स्टेट में आई एच बैंड देखो, एच बैंड में ऐसा है. फिर उसके बाद आई बैंड में देखो कितना डिस्टेंस. देन ए बैंड में कितना डिस्टेंस आ रहा है. 2 सार्कोमियर को है. कॉन्ट्रैक्टेड में ये अंदर की तरफ जाने लग गया, ये अंदर की तरफ जाने लग गया, ठीक है. एच बैंड और ई बैंड की बात है. अब ये ओवरलैपिंग करने लग गए, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड. तो ये 2 सार्कोमियर होंगे, ऐसे बता रहे हैं. रेड मसल में और वाइट मसल्स में मायोग्लोबिन रेड मसल्स में बहुत ज़्यादा होता है, सो इट इज़ रेड. उसमें कम होता है, पील होता है. सार्कोप्लाज्मिक रेड सार लेस एक्सटेंसिव, सार्कोप्लाज्म में मोर एक्सटेंसिव. ब्लड वेसल्स मोर एक्सटेंसिव, इसमें कम होती हैं. मिटोकॉन्ड्रिया मोर, मिटोकॉन्ड्रिया कम. रिस्पॉन्स इज स्लो, रिस्पॉन्स इज रैपिड. कॉन्ट्रैक्शन इज पावरफुल, कॉन्ट्रैक्शन इज मोर पावरफुल, लेस पावरफुल. So contraction is more powerful in white and less in red. This muscle is involved in prolonged and continued activity that goes sustained contraction. This muscle is not involved in prolonged and continued activity, is relaxed immediately. Fatigue occurs slowly and fatigue occurs quickly. Depend on cellular respiration for ATP production, so-called aerobic. Depend on aerobic energy for process for energy. So marathon athletes develop red fiber in thick thigh muscle due to repeated contraction. तो उनकी मसल्स रेड वाली हो जाती हैं. ये इंपॉर्टेंट है किस तरह काम होता है. एच बैंड का, आई बैंड का, एच बैंड, आई बैंड, ई बैंड, जेड लाइन, उनके बीच में रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिफरेंस आने लगता है, तो ध्यान से देना इसके अंदर. ये इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है. देन इनवॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री का मतलब जो कि नॉन स्केलेटल है. द मसल्स आर सॉफ्ट, सो विसरल ऑर्गन में अनस्टार्टेड होते हैं. कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय विल, सो इनवॉलेंट्री. ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आर कनेक्टेड टू द एएनए सिस्टम, इसमें अंदर होता है. जैसे कि अब देखते हैं स्मूथ मसल. देखो न्यूक्लियस सेंटर पे है, बीच में आ रहा है, मायोफिब्रिल्स मिल रही हैं, सार्कोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. थोड़ा इट इज़ शॉर्ट, सिंपल शेप्ड, अनब्रांच्ड. cells are connected through gap junction. It contains nucleate cytoplasm. इसको क्वेश्चन आया हुआ है. found in cytoplasm. Contractile fiber present in cytoplasm. Due to this region is called sarcoplasm. This contractile fiber called myofibril, which is found in scattered form. Myofibril are made up of actin and myosin, but are actually less than skeletal. ओके तो ये भी बनता है. टेन मायोसिन कम, बट फिलामेंट्स आर नॉट प्लेस्ड इन अ हाईली ऑर्डर्ड पैटर्न. एक्टिन इज मोर देन मायोसिन, वाइट है. मायोफिब्रिल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल. ओके उसमें सार्कोमियर था, इसमें मायोफिब्रिल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनवॉलेंट्री मायोफिब्रिल्स. ओके मसल फाइन. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल ट्यूबुलर सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड. SR इसमें वेल डेवलप नहीं है. दिस मेक्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम लेवल. सो इस कॉन्ट्रैक्शन इज लॉन्गर. ओके इट remains in contracted stage for longer period. Due to this reason muscle called non-fatigue muscle. ओके इसीलिए इसे नॉन फटीग मसल कहते हैं. कॉन्ट्रैक्शन लार्जर टाइम पे होता है. remains in contact for longer period, strongly dependent on ECF, calcium, iron. साइकोप्लाज्मिक में नहीं होता. इसके मायोफिब्रिल को इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वॉलेंट्री
मसल्स की बात है। अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स की। ज़्यादा नहीं है कार्डियक मसल्स में, इन्हें हमें थोड़ा ही पढ़ना है। ओके, let's start with the cardiac muscle. So cardiac muscle, it is a special type of muscle found only in the heart. सबको पता है, स्ट्राइटेड है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच है, इंटरकैलेटेड डिस्क मिलेगी, यूनी न्यूक्लिएट मिलेंगी। याद रखना यूनी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं। ओके, दूसरा डार्क एंड लाइट लाइन ऑल्सो फाउंड इन द मसल फाइबर। डार्क लाइन मिलती है। और नॉन फटीग के भी मसल हैं, नॉन फटीग टाइप मसल। इस कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय विल ऑफ द एनिमल। कार्डियक में ओके, विल ऑफ द एनिमल नहीं है, इट इज़ बेसिक, इट इज on the basis of function it is smooth muscle, but central and autonomic nervous are supplied to, so it is to it type of muscle, so it is a cardiac specialized type of smooth muscles. ओके, नाउ देखिए कार्डियक मसल है, इसमें ब्रांचिंग है, इंटरकैटिस मिलेगी, कनेक्टिव टिश्यू, डार्क बैंड, लाइट बैंड दोनों मिलेगा। ठीक है, फिर इसका कुछ डायग्राम है जो कि बताता है स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक में। ठीक है, कंट्रोल नॉन स्ट्राइटेड ये तो सेंट्रल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होगा, कार्डियक सेंट्रल ऑटोनॉमिक से होगा, बाकी इसकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देन हम आते हैं इसके डायग्राम पे। डायग्राम पे इसमें ज़्यादा नहीं, वही स्ट्राइएशन के बारे में बता रखा है। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल, ओरिजिन फिक्स्ड एंड ऑफ द पॉइंट, प्रॉक्सिमल एंड है, इंसर्शन डिस्टल एंड पे, जहाँ पे वो जाती है वहाँ पे मूव करती हैं। तो एक्साइटेबिलिटी है, कंडक्टिबिलिटी है और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है। देन थ्रेशोल्ड है, जिसके में सब थ्रेशोल्ड में से, और सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की बात करें, ऑल एंड लन लॉ की बात करी जा रही है। ठीक है, so response of muscle fiber is maximum when the stimulus has threshold value or supra threshold value, so response is absent when intensity is sub threshold. muscle twitch यानी पीरियड में जब ट्विचिंग आती है, so it is a single isolated contraction of muscle fiber due to a single stimuli, जैसे कि फ्रॉग को हम ट्विचिंग करते हैं। so मसल कर्व और काइमोग्राफ कहते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, काइमोग्राफ और मसल कर्व। ठीक है, सो इसमें आता है पीरियड, लैटेंट पीरियड, ओके, इंटरवल बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ एक पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कि 0.01 सेकेंड का होता है। स्केलेटल मसल 3 सेकेंड का होगा, इन स्मूथ मसल में, सॉरी, इन स्केलेटल में 0.01 का होगा, सेकेंड का होगा, स्मूथ में 3 सेकेंड का होगा। कॉन्ट्रैक्शन बेस की बात की जाए, सो पहले तो लैटेंट पीरियड, ड्यूरेशन फॉर विच द मसल रिमेन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। ओके, स्केलेटल और स्मूथ में 20 सेकंड का और स्केलेटल में 0.04, अभी जो हमने पढ़ा था ज़्यादा होता था कम होता था। लैक्स फेज में इंटरवल फॉर कॉन्ट्रैक्टेड मसल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट, सो स्केलेटल में 0.05 सेकंड का है, स्मूथ में 23 सेकंड का है। ओके, सो ये हमारा डायग्राम है, 0.0 सेकंड लैटेंट फेज, कॉन्ट्रैक्शन 0.04। ओके, देन स्केलेटल मसल के बारे में, देन रिलैक्स स्टेट 0.05 to 6, यूँ ऐसे करके गिराया हुआ है। हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 5, पैरालिसिस, सो सप्लाई ऑफ मोटर नर्व कंप्लीटली कट ऑफ, सो फंक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप। शिवरिंग में इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होने लगती हैं, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। ओके, स्केलेटल की होता है। मसल टेंशन, फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड मसल टेंशन। सो आइसोमेट्रिक हो सकता है या आइसोमेट्रिक हो सकता है या आइसोटोनिक हो सकता है। और टॉनिक में लेंथ चेंज्ड बट द टोन रिमेन सेम। ओके, मीन्स वॉकिंग load is lifted, walking is or when the load is being lifted, तो आइसोटोनिक हो गया। आइसोमेट्रिक में लेंथ सेम बट टोन चेंज। ओके, वर्क लोड इज 0, पुशिंग अगेंस्ट एन इमूवेबल बल ऑब्जेक्ट। तो आइसोमेट्रिक मतलब बराबर दे रहे हैं, आइसोटोनिक मतलब टॉनिसिटी बढ़ रही है। ओके, दैट मीन लेंथ चेंज हो रही है, ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें सेम हैं। देन आता है स्पीड, स्केलेटल मसल की स्पीड, कार्डियक की, स्मूथ की। ओके, स्मूथ मसल की 46 सेकंड्स पर कॉन्ट्रैक्शन साइकिल होती है, कार्डियक की 0.8 सेकंड्स की होती है और स्केलेटल की 0.1। राइगर मोर्टिस का मतलब जब डेथ हो जाती है तो फ्रेश सप्लाई ऑफ एटीपी बिकम इम्पॉसिबल, सो द लोकल स्टोर ऑफ एटीपी खत्म होने लगता है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन,
cannot takes place resulting permanent state of contraction. So इसे एक राइगर मोर्टिस कहते हैं, 1 घंटे बाद फिक्सेशन ऑफ द डेथ के बाद. देन ईडीटी, ईडीटी के बारे में, इफ इंजेक्टेड इनसाइड मसल कंबाइंड विद कैल्शियम एंड स्टॉप कॉन्ट्रैक्शन, ईडीटी है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 13 पॉइंट. देन मसल एंड नर्व एक्साइटेबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय पोटेशियम. मसल और नर्व एक्साइटेबिलिटी को ओवरकम करना है तो पोटेशियम दे दिया जाता है. तो इसलिए लोकल एनेस्थीसिया में भी पोटेशियम रेटेड देते हैं. देन ड्यूरिंग muscle contraction chemical energy change into mechanical energy. Okay, so our stretching of ligament is called sprain. Then phosphogens क्या है, important है. They are highly nitrogen based compound which are found in muscle. In invertebrates arginine phosphate and in the vertebrate creatinine phosphate acts as a phosphogen. These compound provide energy during contraction. तो जो आपका वे प्रोटीन और बाकी जो डिब्बे दिए जाते हैं उसमें क्रेटिनिन फॉस्फेट और अर्जिनिन फॉस्फेट होता है. क्रेटिनिन फॉस्फेट जब एटीपी के साथ मिलता है, एडीपी के साथ मिलता है तो क्रेटिनिन प्लस एटीपी रिलीज आउट करता है, मेकिंग कॉन्ट्रैक्शन एट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन एट रेस्ट. तो इससे बॉडी एनर्जी मिलती है, इसलिए उसे फॉस्फोजेंस कहते हैं. और दे आर हाईली एनर्जी नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स फाउंड इन द मसल. बाहर से देने पे ये चीज़ देगा. इन मसल 75% पानी होगा, 20% प्रोटीन होगा, बाकी ग्लाइकोजन, क्रेटिनिन फॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट, ओके, इनऑर्गेनिक आयन, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट. स्पेशल पॉइंट की वही बात करी है, शैंक जो कि हमारा थाई है उसमें गैस्ट्रोनिमिस्कस मसल्स होती है. ओके, फिर होता है लॉन्गेस्ट मसल सर्टोरिस होती है, लॉन्गेस्ट मसल टांग की सर्टोरिस होगी. ग्लूटेस मैक्सिमस बटक बट्स की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क है, बड़ा है स्प्रेड है तो बटक्स में ग्लूटेस मैक्सिमम इज लार्जेस्ट विद लॉन्गेस्ट इज सर्टोरिस. स्टेपेडिस स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, स्टेपेडियस, ओके, ना कि स्टेपेडियस है, स्टेपीज नहीं है. ओके, जॉ मसल मेसेटर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, सो वहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई जॉ की, स्मॉलेस्ट हो गई स्टेपेडियस की, लार्जेस्ट होगी बट की, लॉन्गेस्ट होगी सर्टोरिस की. इन ह्यूमन बीइंग मसल टोटल नंबर कितनी है 639. 400 मसल्स टाइटेड हैं, बाकी फाउंड इन द बैक रीजन एंड नंबर ऑफ बैक मसल्स आर 180. तो लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल प्रेजेंट इन द यूट्रस ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी. अब इसके बाद एंटागोनिस्टिक मसल क्या होती हैं? दीज आर द पेयर ऑफ मसल विच कॉज अपोजिट मूवमेंट ऑल एट द सेम टाइम व्हेन मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग. एग्जांपल बाइसेप्स बाइसेप अलग काम कर रही है और ट्राइसेप अलग काम है, तो बाइसेप फ्लेक्सर और दूसरा एक्सटेंसर काम देगा. एक आता है कोरल साइकिल. सो लैक्टिक एसिड मतलब है व्हेन इट कंप्लीट इन द मसल ड्यूरिंग सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लैक्टिक एसिड. Now this lactic acid transformed in the blood and lactic blood act as blood lactate to liver where it changes into liver glycogen which is changed to glucose. तो वही बात है, कॉरी साइकिल मतलब जो हमारा लैक्टिक एसिड बना वो कहाँ जाएगा, पायरुवेक एसिड बनता है लैक्टिक, तो लैक्टिक एसिड जाएगा लिवर में, लिवर ग्लाइकोजन बन के ब्लड ग्लूकोज बनेगा, वहाँ से मसल में जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे. तो इसकी वाली साइकिल होती है. तो दिस इज आवर एंड विथ आर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल मूवमेंट. We will give more further details about other need topics in next class. Thank you.